we will start lesson number 1 in English subject for class 4th. The name of the lesson is The Bell of Atri. The Bell of Atri. Okay, you know what is the meaning of bell? Bell is an instrument, or bell is a thing which makes a sound, pleasant sounds. Okay, so the Bell of Atri. I will read it out for you first. Once upon a time, a good and wise king ruled in the city of Atri. यानी एक समय पर एट्री जो सिटी थी, जो शहर था, उसमें एक राजा जो कि बहुत अच्छा था और बहुत वाइज था, इंटेलिजेंट था, वो राज करता था. His name was John. What was his name? What was the name of the king? John. King John wished all his people to be happy. तो राजा क्या चाहता था कि उसके जो किंगडम है उसके सब लोग बहुत खुश रहें. To ensure that justice was done to everyone in the city, in his city, he ordered a great bell to be hung in a tower. So, to look after that the justice should be given to each and everybody, what he did, he ordered to hang a great bell onto the tower. उसे ऐसा लगा कि सभी को न्याय मिलना चाहिए, तो इसलिए उसने एक बहुत बड़ी सी बेल, घंटी, वो टावर के ऊपर लटकाने का ऑर्डर दिया. A long and strong rope was tied to the bell. See, somewhere this type of bell was there. Okay, बहुत बड़ी बेल थी और एक स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग, बहुत लंबी और मजबूत उससे रस्सी बांधी गई. वाई? उससे रस्सी बांधी गई और द रोप वॉज सो लॉन्ग दैट इट नियरली रीच द ग्राउंड. और वो जो रस्सी थी वो इतनी लंबी थी कि वो ग्राउंड को भी टच कर रही थी. I have placed the bell in the center of my city, said the king, so that it is near all the people. The rope is so long that even a child can reach it. So the king said that I have placed the bell in the center of the city. मतलब जो शहर है मैंने उसके बीचों बीच, in the center, in the middle, I have set the bell. And he told that the rope is so long that even the child can also reach it. उसकी रोप जो है वो इतनी लंबी है कि एक बच्चा भी उससे टच कर सकता है. Then the king proclaimed, he announced, if there be anyone, young or old, rich or poor, among my people who feels that he has not been justly treated, let him ring this bell and his story shall be heard. तो राजा ने अनाउंसमेंट किया, ये प्रोक्लेम किया दैट कोई भी मेरे राज्य में, मेरे किंगडम में, यंग और ओल्ड यानी बच्चा हो, बूढ़ा हो, रिच और पुअर, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, अगर उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ न्याय, जस्टिस नहीं हुआ है, तो वो मुझे अपनी स्टोरी बता सकता है. The bell of justice had hung its place for many years. तो ऐसे ही वो जो बेल थी वो बहुत सालों तक उसमें in the palace लटकती रही. Many times it had been rung by the poor and needy, and justice had been done to all those who had asked for it. बहुत बार जो नीडी लोग थे, जो पुअर लोग थे, वो आके उन्होंने जो बेल थी उसको बजाया, दे रंग द बेल, उसको बजाया और उनको जस्टिस मिला. After many years the long rope was worn out with use and age. अब बहुत जब साल बीत गए तो रोप पुरानी हो गई और ख़राब हो गई. When it was taken down, another rope which was long and strong enough could not be found. अब क्या हुआ
कि वो इतनी बड़ी और इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी लंबी रोप थी कि उसके रिप्लेसमेंट में, उसके दूसरे ऑप्शन में जो रोप थी, रस्सी थी, वो नहीं मिल पा रही थी. What if someone should need help while the rope is down? Cried the people. तो लोगों ने कहा अगर हमने ये रस्सी जब हम चेंज करेंगे, जब हम निकालेंगे रस्सी, उस समय पे अगर किसी को हेल्प चाहिए होगी तो क्या होगा, वो कैसे बजाएगा घंटी को, कैसे बजाएगा. We must find something to take its place. हमें इसकी जगह पे कुछ करना होगा. One of the men cut a long grapevine and fastened it to the great bell. तब किसी ने क्या किया, एक इंसान ने एक बहुत बड़ी ग्रेपवाइन थी, यानी अंगूर की बेल थी और बहुत बड़ी थी, उस पर बहुत सारे अंगूर भी थे, वो उसने बेल पे लगा दी. In springtime, green shoots and leaves hung from the grapevine rope. अब स्प्रिंग टाइम आया, जब तक रस्सी मिली ही नहीं थी, स्प्रिंग टाइम आया और वहाँ पे छोटे छोटे अंगूर के फल, ग्रेप्स उगने लगे. An old rich soldier lived near the city of Atri. He owned a strong and magnificent horse that had fought many great battles with him. अब सिटी ऑफ एट्री में एक रिच सोल्जर रहता था जो कि अब बूढ़ा हो गया था और उसके पास एक हॉर्स था जो कि बहुत ही बढ़िया था, बहुत एक्सीलेंट था. और उस हॉर्स ने सोल्जर के साथ मिलकर बहुत सारे बैटल्स भी जीते थे. The horse had now grown old, lame and was no longer able to work. अब जो हॉर्स था वो बूढ़ा हो गया था. He was old, lame यानी वो लंगड़ा हो गया था and उसको अभी काम उससे नहीं होता था. So his cruel master turned him out of his stable into the street. तो उसके जो क्रूअल मास्टर ने, सोल्जर ने क्या किया, मालिक ने उसको सड़कों पर छोड़ दिया. You are nothing but a burden to me, said the cruel miser soldier. You are of no use to me. तो सोल्जर ने क्या कहा, You are nothing but a burden to me. अब तो आप कुछ भी नहीं हो, हॉर्स से कहा तुम कुछ भी नहीं हो मेरे लिए बस एक बोझ हो और You are of no use to me. और अब आपका मेरे लाइफ में मेरे लिए कुछ भी काम नहीं है. The horse went limping around and he grew thinner and thinner. अब बेचारा हॉर्स क्या करता, वो बेचारा लंगड़ाते लिम्प करते हुए एक जगह से दूसरी जगह सिटी में घूमता रहा और थिनर एंड थिनर, बहुत दुबला और दुबला होता गया क्योंकि उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला. At last he came to the tower where the bell of justice hung. तो अंत में वो कहाँ आया, जहाँ उस टावर के पास आया जहाँ पे बेल ऑफ जस्टिस टंगी हुई थी, है ना. बेल ऑफ जस्टिस जहाँ पे टंगी हुई थी वो वहाँ पर आया और उस पर क्या था, उस पर थी ग्रेपवाइन. उसके ऊपर क्या थी, अंगूर की बेल. His dim and weak eyes saw the green shoots and the fresh leaves of the grapevine. तो उसकी आंखें भी बूढ़ी हो गई थी, आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता था, कम दिखाई देता था. तो डिम यानी उसको बहुत धुंधला दिखाई दिया और उसने देखा कि यहाँ पे तो अंगूर के फ्रूट्स लगे हुए हैं, ग्रेप के फ्रूट्स हैं, शूट्स हैं और फ्रेश लीव्स भी हैं. तो हॉर्स इज़ अ वेजिटेरियन. हॉर्स ने पत्ती खाता है, फ्रूट्स खाता है, फल खाता है, लीव्स खाता है, प्लांट्स खाता है ना, ग्रास खाता है. सो थिंकिंग दे वर गुड टू ईट ही गेव अ पुल एट द वाइन. तो उसको लगा, भूख लगी थी, उसे लगा कि मैं इसको खाता हूँ, तो उसने उसको खींचा. जो ग्रेप वाइन थी या अंगूर की बेल थी उसको उसने खींचा. डिंग डोंग रैंग द ग्रेट बेल. तो जब उसने खींचा उसको बेल को, ग्रेप वाइन को, तो जो बेल थी वो क्या होने लगी, बजने लगी. कैसे, डिंग डोंग.
The people came running from all sides. तो जैसे ही वो बजने लगी बेल तो सब लोग सब तरफ से दौड़कर आ गए. Who is calling for justice? They all cried. सब चिल्लाए. किसको अभी न्याय चाहिए? किसको चाहिए न्याय? किसको जस्टिस चाहिए? Whose horse is this? Asked the judges. तो जज भी वहाँ थे जो डिसाइड करते हैं कि गलत हुआ है क्या सही हुआ है. तो ये किसका घोड़ा है? उन्होंने कहा ये किसका हॉर्स है. A man came forward and told them the story of the old horse. तो एक व्यक्ति था, one person was there, he was knowing everything about the horse. तो उसने आगे आके बताया. The judges sent for his cruel master. तो अभी जजेस कहाँ गए? उसके क्रूअल मास्टर सोल्जर के पास गए. They ordered that the old rich soldier should build a barn and that the faithful horse should have the best of hay and grain as long as he lived. वो गए और उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो सोल्जर है उसे बहुत ही बढ़िया स्टेबल यानी अस्तबल बनाना पड़ेगा जहाँ पे हॉर्स रहता है. बार्न यानी जहाँ पे एनिमल को रहने की जगह होती है बनाएगा. और उस फेथफुल हॉर्स के लिए जब तक वो ज़िंदा रहता है उसके लिए हे यानी चारा और ग्रेन्स चने खाते हैं हॉर्स, उनको बहुत पसंद होते हैं, है ना, ग्राम्स चने, तो वो भी जब तक वो ज़िंदा रहता है तब तक उसको देगा. The people shouted with joy, justice prevails in the city of Atri. तो लोग खुशी से चिल्लाने लगे फिर कि देखो सिटी ऑफ एट्री शहर में अभी भी जस्टिस रहता है. लॉन्ग लिव किंग जॉन जिंदा रहें, किंग जॉन जिंदाबाद, ऐसे सब बोलने लगे. द क्रूएल मास्टर hung his head in shame and led the old horse away. और क्या हुआ कि जो क्रूएल मास्टर था, जो सोल्जर था, उसका तो शर्म से सर ही झुक गया और उसने वो उस हॉर्स को लेकर चला गया क्योंकि अभी उसको ऑर्डर तो फॉलो करना ही पड़ेगा जजेस का. नाउ इन द CW नोटबुक and in HW notebook you have to write down the word meaning which are given in the lesson, in the story, okay, and after that I will be sending you the PDF of the questions and answers. Okay, thank you so much.